تھا عمران خان صاحب کی ذاتیات کے اوپر کیچڑ اچھالنا، عمران خان صاحب کی اہلیہ سابقہ خاتون اول محترمہ بشرا بیگم صاحبہ، ان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنا، ان کو کسی طریقے سے فائنینشیل کرپشن کا اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا حصہ تھا ایک کل جو جعلی آڈیو ٹیپ لے کے آئے، تیسرا حصہ وہ تھا۔ تو یہ تین حصے تھے، تو تینوں پہ ایک ایک کر کے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو پہلے حصے پہ بات کر لوں تو میں پہلے حصے پہ، کیونکہ ہم بار بار بتاتے آئے ہیں کہ ہم نون لیگ نہیں ہیں، ہم نون لیگ کی طرح لندن میں بیٹھ کے اپنے آرمی چیف جنرل باجوہ کو گالیاں نہیں دیتے، ہم اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو گالیاں نہیں دیتے، ہم نون لیگ کی طرح ڈان لیگز نہیں کرتے، ہم پیپلز پارٹی کی طرح آپ کو یاد ہے میمو گیٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ ہمارے لیڈر کو یہ بات پتہ ہے، اور کل انہوں نے اپنی، پیچھے خاموشی رکھیے گا جی، کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے۔ یہ کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کسی صورت کبھی بھی اپنی آرمی پر تنقید نہیں کرتے، لیکن مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں، جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار، اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے؟ مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پوری حرکت کر کے کوشش یہ تھی کہ کسی صورت یہ دکھایا جائے کہ عمران خان فوج کے مخالف ہے، ہم فوج کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ کیس میں اپنی بہادر افواج پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی انہیں قبول ہے اس طرح کے گندے پرگندے چور گھٹیا صفت لوگوں سے اپنی ترجمانی کروانا؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ دلی خواہش ہوگی، لیکن ان کی اور ان کے اسٹریٹجک میڈیا سیل کی یہ دلی خواہش ہے، اور پتہ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اور کون ہے جو جنرل باجوہ کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تو نام نہیں لیا ان کا، آج یہ بار بار ویڈیوز دکھا رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ اپنے ہی آرمی چیف کو یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پہ بات آئے، یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ ان کے سپوکس پرسن بننے کی جعلی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کام میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ میرے ذاتی خیال میں جنرل باجوہ صاحب پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ انہیں اس طرح کے تھکے ہوئے ترکے ہوئے سپوکس پرسنز کی ضرورت پڑے۔ یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے، پنجاب سپیڈ کے لیے کرنا چاہیے، وہ بات ہے۔ اگلی بات بیانیے پہ میں بعد میں واپس آتا ہوں، جو غداری کا بیانیہ اگلی بات میں کروں گا۔ ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ اطاعت آرڑ جو ہے، یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، یہ کیونکہ نیچرل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا، یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا۔ تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے۔ آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی، نون لیگ کی بھی عورتیں موجود تھیں، ہماری عورتیں بھی موجود تھیں، وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اشارہ۔ تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے، اپنے گھر کی خواتین سے، اپنے لوگوں سے بات کرنے کی، تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا اس ایک چیز میں۔ باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے، اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے، ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں
وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں اور وہ کیا معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں, وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو دو چیزوں میں ماہر ہیں, وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں, میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائڈ پہ رکھ دیا, باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, عطا تارڑ, اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں. اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے. اس کو لگام دیں, اس کو کھولنے والے, اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں, اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ, وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں. جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اس ملک میں, جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا, جو اس طریقے سے, میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا, غصہ کر لیا جاتا. ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تپ ہے لوگوں کو, اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جدوں میں اپنی زبان بولتا ہے. جو بروکری انہوں نے, انگریزی والا قبول ہے, انگریزی میں جو کہو قبول ہے, پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے. جو بروکر وہ بنے تھے, جو بروکری انہوں نے کی تھی, وہ سب کے سامنے ہے. تو جیسی آپ کی تربیت ہے آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھٹیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑھی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پہ, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو منہ ہے ہو جی چپیڑ ماریں گے نا. یہ خصلت, گٹر کے اندر آپ ٹوتھ برش تو نہیں ڈالیں گے, گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دی ہے تاکہ گٹر صاف ہو. گٹر کے اندر ٹوتھ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر, یہ گٹر ہے, ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہنتی ہے گٹر دے وچ. اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی. پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, دوسری کاوش آپ کے سامنے اب میں رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں, دو باتیں میں نے کر دی, تیسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیسری بات انہوں نے کی فرا گوگی صاحبہ کے بارے میں, اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں, تو ان کے, ہم نے تو والیوم کے والیوم جمع کروائے ہوئے, ان کی کرپشن کے ڈاکومنٹس ہیں, اکاؤنٹس ہیں, مقصود چپڑاسی ہیں, ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں, شہباز شریف صاحب کی 3-3 4-4 بیگمات, گرل فرینڈز, ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ہیں. ہوں جہاں چاریاں بھابیاں نے, وزیر اعظم صاحب جہے نے کرپٹ اعظم, انہوں نے کٹڑ نہ لگ پینا, واقعی ہے نے کوئی ایک دو اور سہیلیاں بھی. ان کے لیے خریدے ہوئے تحفوں کی ڈیٹیلز ہیں. ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں, یہ بار بار ایک ہی گردان گنتے ہیں, فرا بی بی. اچھا الزام کیا ہے؟ پنجاب کے اندر ڈی سی, اے سی, کمشنر لگوا کر پیسہ کمایا. اچھا 1 منٹ کے لیے اس الزام پہ آ جاتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے, آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی لاہور کون تھا, پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی ڈی جی خان کون تھا, پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں, چلے میں ایک اور کیس سٹڈی بتاتا ہوں, ڈی سی ملتان کون تھا, بڑا شہر ہے. آج ڈی سی ملتان انہوں دے گھر دا پرونا ہے, پوچھو انہوں نے کون ہے وہ, آج پوچھیں وہی ڈی سی ملتان کہاں پہ لگا ہوا ہے, آج پوچھیں آج ڈی سی لاہور کہاں لگا ہوا ہے, ڈی سی فیصل آباد کہاں لگا ہوا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا. تو اگر ہم نے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کیا لے کے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں وہ؟ اگر ہم نے ان ڈی سیوں سے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کی لیا یا کی دیتا ہے؟ بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے منہ کھول لینا ہے. آپ کا پٹا کھل گیا پر منہ تو بند رکھیں. آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا, جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے, یہ وقت بدل جاتا ہے, وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو, کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تمہوں, جدی تواڈے پھپڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. میں واپس آتا ہوں, اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہے؟
ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। सो अगर सारे अफसरान, आज का सेक्रेटरी खारजा कौन है बता दें। अच्छा, तोशा खाने पे बड़ा रौला डालते हैं। तोशा खाना किसके कंट्रोल में होता है? सेक्रेटरी कैबिनेट के। तो आज का सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? अगर इमरान खान ने गलत किया तो सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं किया होगा। तो आज आपका सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? वही सेक्रेटरी कैबिनेट है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया इसलिए वो आज भी बैठा हुआ है। गलत किया होता तो आप उसको जेल में डालते। अगर उसने गलत नहीं किया तो फिर इमरान खान ने कैसे गलत कर लिया? कहता है तोशा खाना वजीर आजम के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और ਜਿਹੜੇ बिजली ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसे ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। 5 अरब डॉलर जो है वो आप लोग 20 अरब डॉलर में से खा गए थे, जिसकी वजह से आज महंगी बिजली बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने मुंह से मान रहे हैं, इतने बेशर्म है आप कि बिजली इतनी महंगी बन रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजली बंद रखते हैं। ना आपसे बिजली दी जा रही है, ना आपसे गैस दी जा रही है, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपसे डॉलर रुक रहा है, ना आपको, आप कल कहते थे IMF जो है उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ है, इमरान खान और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज पे हैं। इमरान खान और IMF मिला हुआ है और अब कह रहे हैं IMF इमरान खान की बात नहीं मानता, वो उन पे यकीन नहीं करता, हम पे यकीन करता है। अगर आप लोगों पे यकीन करता होता तो आपके पल्ले कुछ डल भी जाता। एक तरफ वो इमरान खान के साथ मिला हुआ था, आज वो आपके साथ मिला हुआ है। एक तरफ IMF के पास जाना बहुत बड़ी साजिश थी, आपको पैसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। सो इसलिए आप अवाम को ये मत समझिए कि अवाम बुद्धू है या अवाम को पता नहीं है। मैं अगली बात पे आता हूं। ये जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है, इसके बारे में हमारे पास शवाहिद आ गए हैं, कुछ चीजें अभी और आने की वेट कर रहे हैं, आपके सामने लाएंगे कि नया ट्वीट करवाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, रीट्वीट कराने के कितने पैसे दिए जाते हैं, कंटेंट क्रिएट करने के। तो मैं दोबारा फहद हुसैन आपको बता रहा हूं, फहद हुसैन आप एक गीदड़ हैं, आपने आजाद सहाफियों को बदनाम किया है। आप यहां पर बैठ के कॉलम लिखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और आजाद सहाफी बनते थे। ये जितने सहाफी यहां बैठे इन सब की तौहीन है। आपका चेहरा है येलो जर्नलिज्म। आप पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेल पे और जिन जिन के कहने पे कर रहे हैं, हमारे इल्म में है। हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र, जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। स्त्री फेरने का मतलब कोई रियासती मशीनरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे। आपका कानूनी तरीके से एहतसाब करेंगे, आपको कानून के नीचे लगाएंगे, आपके सारे बल निकाल देंगे। सो अगली बात मैं आपको कर दूं, पंजाब के मैंने ऑफिसर्स की बात भी कर दी। मैंने आपको मोबाइल फोन्स का जो डाटा है उसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं कि ये पाकिस्तान ने पोर्नोग्राफी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, सिर्फ वही डाटा इशू कर देना इनके लीडरान के फोनों से जो निकला है, तो कोई जरूरत नहीं रहेगी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स देखने की। ये जो बड़े फनकार बैठे बातें कर रहे थे, हमने आपका अंदर और बाहर दोनों देखा हुआ है। हमें पता है बाहर से कितने बदसूरत हैं और अंदर से कितने बदसूरत हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर से कितने कमजोर हैं और अंदर से कितने कमजोर हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं और अंदर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं, हमें सब पता है। वहां तक ना जाएं, करें जहां तक आपकी करनी बनती है। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। पकड़ाई या नहीं पकड़ाई? हर बंदे की एक प्रोनाउंसिएशन होती है, अल्फाज होते हैं, वो कैसे बोलता है। आवाज तो आप सॉफ्टवेयर से मैच कर लेंगे, अल्फाज के लिए आपको अकल चाहिए। वो किसी बेवकूफ ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, एक ही लफ्ज की अदायगी दो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। आप साफी हैं, आप सारा दिन ये वाला काम करते हैं, आपको बड़ी अच्छी, आप लिखा हुआ भी पहचान लेते हैं ये किसने लिखा हुआ है, ये आपका काम है, तो इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहां पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं? इनकी नहूसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है और ये कर ही नहीं कुछ सकते। दोबारा दूसरी उसी बात पर मैं वापस आता हूं। एक बात की, और जी एक ओपन एंड शट केस पकड़ लिया हमने,
ओपन एंड शट केस क्या है कि 10 एकड़ का प्लॉट जो फिडमिक है फैसलाबाद में वो 80 करोड़ का है और वो 8 करोड़ में बेच दिया गया। आप उनकी वेबसाइट पे अभी जाइए, अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी इस वक्त जाइए, फी एकड़ 75 से 85 लाख उसकी कीमत है आज। और इनकी हुकूमत में जो अलॉट हुए हैं उसका भी डाटा निकाल लीजिए, और वो अभी भी वहां बहुत सारी जमीन पड़ी है जो अगले दिनों में अलॉट होनी, वो भी निकाल लीजिए। वो 75 से 85 लाख रुपया फी एकड़ उसकी कीमत है, उस पर उसने अलॉट होना है। मोटरवे पे है, शहर से बहुत बाहर, उस पर उसने अलॉट होना है, तो उसकी 8 करोड़ की कीमत बनती है। 60 कह रहा है, ये आज 20 करोड़ दे, मैं वो प्लॉट इसको देता हूं। लाइए, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं कहता हूं, ये 20 करोड़ रुपए का चेक ले आए, आज ही प्लॉट इसको दिलवा देते हैं उनसे मिन्नत करके जिनका है। इस्लाम और फैसलाबाद में 20 और प्लॉट हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये 10 एकड़ के प्लॉट का 20 से 25 करोड़ रुपया दें, मैं इन्हें दिलवाता हूं वहां पे प्लॉट जितने चाहिए। उसकी कीमत ही 85 से 75 लाख रुपया फी एकड़ है और वेबसाइट पे मौजूद है। आप फैसलाबाद में किसी से, चैम्बर के लोगों से इंटरव्यू कर लें, किसी से इंटरव्यू कर लें, सबको पता है उसकी कीमत क्या है। और ये इसने ओपन एंड शट केस इसने पकड़ा है। सो इसलिए गलाजत करें, वो आपने करनी है, हमें पता है। आपको मुंह की बवासीर है, हमें पता है आपने ये बातें करनी है, आप नहीं रुक सकते। आपकी तरबियत ये, आपने बार बार दिखाया आपकी तरबियत क्या है। आप आइंदा भी करेंगे, लेकिन उतनी करें जितनी पाकिस्तान की आवाम जो है उसको बर्दाश्त कर जाए। आगे आपके सामने ये बेहतरीन जर्नलिज्म रखने लगा हूं मैं। जब मेरी सीनियर मैनेजमेंट के साथ बात होती थी जियो टीवी की हमारी हुकूमत के दौरान, तो मुझे एक बात कहते थे, मुझे आज भी याद है और उसके गवाह हैं, इरशाद भट्टी उसके गवाह हैं। और मुझे कहते थे कि हम पाकिस्तान का बेहतरीन मीडिया है, हम कभी जाती स्कैंडल नहीं करते, हम खबरें करते हैं। हम कभी भी लोगों की, औरतों की, बेडरूम की इज्जतें नहीं उछालते। ये मुझे उनके मालकान, ये मुझे उनकी सीनियर मैनेजमेंट कहती थी माफ कीजिएगा। और इसके गवाह मैंने दोबारा कहा, इरशाद भट्टी इसके गवाह मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कहा था। जियो टीवी पिछले 3-4 महीने से क्या कर रहा है और उससे पहले भी क्या करता रहा है वो आपके सामने है। एक ही काम है लोगों की, औरतों की इज्जतें उछालना। यार कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो, अपने आबाओ अजदाद की इज्जत का कुछ ख्याल करो। आपके पास यही साफत रह गई है कि आपने लोगों के घर की, आपके पास और कुछ नहीं है। कितना कुछ है यार, कितना कुछ है सियासत में बात करने का। ये इनका अखबार है जी, ये मेन पेज है इस अखबार की, 2 नंबरी चेक करें। ये मरियम बीबी की जलसी है लाहौर के अंदर, जो सबने देखा उसमें कितनी पब्लिक थी। कॉर्नर मीटिंग थी जो नून ने उसे खुद कॉर्नर मीटिंग कहा था। ये उसकी तस्वीर लगाई हुई है। इस्लामाबाद का एडिशन है ये, मैं लाहौर का एडिशन नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद का एडिशन है। और कल यहां पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा जलसा। वो कहीं मौजूद नहीं है फ्रंट पेज के ऊपर उसकी तस्वीर। जब इस तरह की 2 नंबर सहाफत होगी, जब ये जर्नलिज्म होगा, आप कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट खोल लें, आप कोई इस तरह की येलो जर्नलिज्म करना शुरू करें। बल्कि आप ऐसा करें, मेरा मशवरा यह है, लोगों की नंगी वीडियोस अपने चैनल पे चलाया करें। अब आपका धंधा और काम वो रह गया है, वो करें ताकि आपको थोड़ा सुकून आए। आप अभी तो हमारे जिस्मों के ऊपर कपड़े हैं, उतार दें। ये भी कुछ ना कुछ गुनाहगार तो हम भी होंगे ना कोई गुनाह तो करते होंगे, हमारी भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो भी निकालें। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। तो आप अपना शौक पूरा करें। तो ये जो आप शुरू करते हैं ना वीडियोस और ऑडियोस, और लोगों के घर की औरतों पे करते हैं, तो आपके घर के अंदर भी औरतें हैं, आपके घर के अंदर भी फैमिलियां हैं, आपके भी किस्से होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के पोते आप भी नहीं हैं, आपके भी किस्से होंगे, आप भी गुनाहगार इंसान हैं। कोई शर्म करें, सहाफत करें, बगैरती ना करें। मेरा आपसे ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो ये कर रहे हैं। तो ये जिस धंधे में आप पड़े हुए हैं, अब आप हमें वहां तक ले आए हैं कि जो बात आप करेंगे उसकी दुगनी आवाज में आपको जवाब होगा। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, हम आपकी औरतों का एहतराम करते हैं, इमरान खान की यही तलकीन है। हर सूरत आपकी औरतों का एहतराम मलूज़े खातिर रखेंगे, हम आपके लेवल पर नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर आपने दोबारा
खातून अव्वल के बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की तो मैं इस टेस्ट ट्यूब बेबी को बता रहा हूं कि फिर आपको उसी जुबान में जवाब आएगा। बहुत हो गया आपके खिलाफ, फरा बीबी के बारे में कुछ है, खातून अव्वल के बारे में कुछ, अदालतें खुली हैं आपके नीचे हैं, करें जाकर। आपने जमाइमा के ऊपर भी जाली केस किया था, आपने लोगों की आपने तो अपने घर की औरतें, आयशा आहद को छोड़ा था आपने, आयशा आहद की जवान बेटी को छोड़ा था आपने उनको थाने में जूते मरवाए थे, वो खुद कहती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके हमजा मान गया था मेरी बीवी है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी बीवी थी, चीफ जस्टिस के सामने, वहां पर जाके मान गया कि मेरी बीवी है, और उसी बीवी को थानों में तो आप अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करते, आपने दूसरों की क्या करनी है। लेकिन ये माशरा इतना नहीं गिरा कि आपकी गलाजत को बाय करे। तो मैं वापस रिवर्स पहले पॉइंट पे आता हूं कि आज जिस किस्म की इन्होंने हमारे इदारों की स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश की है, इन्होंने जनरल इफ्तिखार बाबर की तौहीन की है, इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तौहीन करने की कोशिश की है, इन्होंने मुल्क के आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में आर्म्ड फोर्सेस को इन्हें एक पैगाम देना चाहिए कि तुसी एडे लाइक नहीं, तुसी अपना गांधी तोलो तो बड़ा है, अपनी बात हम खुद कर सकते हैं और हमें करनी आती है। तुसी ते आप मेरा ख्याल एरियल खरीद लो, ਤੁਹਾਡੇ कपड़ियां ते जिन्ने दाग ने उतने दाग तो मेरा ख्याल ही शायद किसी के कपड़ों पे भी हों। तो पहले अपने दाग धो लें, फिर दूसरों की बात कर लें। शुक्रिया। पहले तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से माशाल्लाह से सियासियात के स्टूडेंट्स को ये जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इस तरह की जो भी है, चाहे वो तारण करता है, चाहे वो शहबाज गिल करता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और असद उमर साहब ने जो आपने बताया वो अच्छे उनके रिमार्क ठीक हो गया। आगे आ जाइए। बात ये है कि अब आप आसान अल्फाज में ये बता दें कि बुशरा बीबी वाली जो आप कह रहे हैं उसमें वो डब्ड है, क्या है, आप क्या समझते हैं उसके बारे में? उसका मैं जवाब आपको दे चुका कि ये पहली दफा नहीं है। मैं आसान देता हूं, मुश्किल लग रहा है आपको तो आसान देता हूं। नहीं, मैं देता हूं। अब आपने अब सवाल कर लिया ना, मैं बताता हूं। देखिए, बात ये कि ये पहली ऑडियो और वीडियो नहीं है जो फेक तैयार की गई है। ये पहली नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ लें। ये पहली दफा ये हरकत नहीं कर रहे। मसला ये कि और एक चीज तो क्लियर कर दी आपने, अगर देखा होगा तो एक चीज मलिक साहब क्लियर कर गया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जो साजिश होती है ना वो छुपाई जाती है, यही कहा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि जो साजिश होती है वो छुपाई जाती है। तो यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। साइफर आया, साइफर छुपाया गया, साइफर छुपाया गया शाह महमूद कुरैशी से, साइफर छुपाया गया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से। तो यहीं से तो साजिश का आगाज हुआ था। वो तो फिर गले में उंगली डाल के निकाला गया वो साइफर। तो आज मलिक साहब ने एक्चुअली अपनी खुद इंडाइटमेंट कर दी है। इस सारे बयानिए पे उन्होंने मोहर लगा दी है। उन्होंने बता दिया कि साजिश वो होती है जहां पर कुछ छुपाया जाए। तो आज की जो साजिश है वो आपके, आज जो उनका बयानिया है उसने हमारे बयानिए को असल में प्रूव कर दिया है कि साजिश वो होती जो छुपाए। और हमें बार बार कहा गया कि साइफर का नाम ना लें, इसको खुफिया ही रहने दें, इसको छुपा हुआ ही रहने दें। बार बार कहा गया, बार बार मौकों पे कहा गया। तो पहले छुपाया गया, जब वो हमारे सामने आ गया तो फिर हमसे रिक्वेस्ट की गई कि इसको छुपाया जाए। तो इसलिए ये तो अब मलिक साहब खुद बता गए कि साजिश वही होती है जो छुपाई जाए। एक एक करके दाखिला भी है, वो कह रहे हैं कि जी हमने 15-16 सीटें पंजाब में जीत लेनी, क्या वो किस तरह जीतेंगे? मैंने तो ये 2 तो नहीं, महीना पहले बता दिया था कितनी सीटों का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है धांधली करने का, किसके साथ मिलकर किया हुआ है, कौन सारी गवर्नेंस हो रही है, ये सब कुछ हमारी पार्टी सामने ला चुकी है, सारी बातें कर चुके हैं। बाकी पब्लिक में मैं आपको मैं इन्वाइट करता हूँ, कोई आप में से 4 बंदों का ग्रुप बना लें, आप चूज कर लें अपनी मर्जी का हल्का, मैं आपको गाड़ी ड्राइवर प्रोवाइड करूंगा, वहां डोर टू डोर सर्वे कर लें, आपको वोटिंग पैटर्न सामने आ जाएगा। 70 से 80% पीटीआई का वोटर है। इन्होंने कितों जित लैनिया ने सीटां, ये फिर तुहानू भी पता है तो मैनू भी पता है। इधर ले ले सवाल सीनियर आदमी। अगर फराह होगी की बात की जाती है, आपसे सवाल किया जाता है, उनके ससुर को इन्होंने सूबाई वजीर बनाया, उनसे पहले क्यों नहीं पूछा जाता? आपसे अलीमा बाजी के बारे में तो पूछा जाता है, उनके शौहर जो इनके एमपी रहे हैं उनसे क्यों नहीं सबसे पहले जाते, क्यों नहीं पूछते? देखिए, 2 बातें ज़हन में रखिए।
हमारे में और इनमें यही फ़र्क है। नवाज शरीफ ने कहा था ना, मेरे असासे आमदन से जायद हैं तो किसी को की तो की तकलीफ। हम ये नहीं कहते, हम जवाब देते हैं। हमारा और इनका फ़र्क ये है, अगर ये किसी को हमसे एसोसिएट करते हैं, हम जवाब देते हैं। ये तो बड़ा आसान जवाब है हमारे लिए भी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि फराज साहबा के ससुर जो हैं वो इनके सूबाई वजीर, इनके MP हैं, बड़ा आराम से जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हमारी और इनकी फितरत में यही फ़र्क है। ये बता दीजिए कि आपने बात की कल जो वीडियो रिलीज हुई है, आप उसको फेक करार दे रहे हैं, मुखालिफिन फेक करार देते हैं, क्या कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि वो फेक है? पहली बात, ये कब तक होता रहेगा कि एक वीडियो आती है, उसको दूसरे मुखालिफिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फेक करार दे देते हैं? आप फाहद हुसैन पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या जो आप कह रहे हैं कि आप कानूनी तरीके से जब हुकूमत आएगी तब उनका मुहासबा करेंगे, क्या अभी कानूनी तरीके से मुहासबा नहीं हो सकता? बिल्कुल, अभी भी कोशिश करेंगे। पहली सर कोशिश क्यों होती है? हमारे यहाँ पर बाकायदा फेक न्यूज़ है, जितने ये फेक वीडियो है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? कानून मौजूद ही नहीं है ऐसे। जब बनता है तो आप शोर मचा देते हैं साथ, हालांकि आपने सही खबरें देनी होती। गलत हो गया सवाल का। अगला सवाल, अगला कोई है सवाल? लंबा हो गया ना, हो गया। क्या सबसे पहले ये आपको पता है किसने छुपाया? आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं जाना है तुसी दस दो। ये बताइएगा कि जिसने साइबर छुपाया, 1 महीने बाद भी आपकी हुकूमत रही, आपने कार्रवाई क्या की उसके खिलाफ? उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में आ चुकी थी। उस टाइम सुन ले, बात सुन ले, सवाल करे ना, मुकालमा तो ना करे ना। तो आजकल हर जगह मुकालमा करने का शौक है। उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में थी। उस टाइम हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ऑलरेडी हो चुकी थी। उस टाइम हम ऑलरेडी उस साजिश का मुकाबला कर रहे थे। उस टाइम सारी एनर्जी उस साजिश के ऊपर लग रही थी। उस टाइम मुहासबा करना मुमकिन नहीं था, और अगर किया जाता मुहासबा तो फिर भी उन लोगों को बड़े आराम से छुड़ा लिया जाता। यहाँ तो मकसूद चपरासी को नहीं पकड़ने दिया गया, तो उसको क्या पकड़ने देना था? इधर सुनो, मैंने आपका सवाल ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है, तो उस पर आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन के ऊपर सारी बातें की गई हैं, ये नवाज शरीफ ने करवानी शुरू की हैं। नवाज शरीफ ने और मरियम सफदर ने खुर्रम दस्तगीर से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई एक्सटेंशन के बारे में, नए आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में। ये सारी गलाजत फैलाने के लिए, हमारी आर्मी को, आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, आर्मी के अंदर रिफ्ट क्रिएट करने के लिए। फिर वो वीडियो उतर गई मीडिया से। वो क्यों उतरी वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। वो रात आई फिर उतर गई। तो ये सारी, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी बहस। हमने पहले भी कहा, हम एक ज़िम्मेदार पार्टी हैं। हम अपनी फ़ौज को किसी भी सूरत वीक करने की किसी बात में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, ना कभी बने हैं ना बनेंगे। ये जो बहस है, ये बिल्कुल इस वक्त की बहस नहीं है। जब वक्त आएगा इसके ऊपर बात होगी। अभी ये बात करके हम अपने आर्मी चीफ और अपनी फ़ौज को बिल्कुल किसी सूरत कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते। ये इनका कमाश है, गुड कॉप गॉड बैड कॉप, और इन्होंने खेला है, इनको खेलने दें। आप पहले ये बताएं, कल के जलसे से खुश हैं आप? तो बस इससे ज़्यादा हमें और क्या खुशी होनी है कि आज़ाद इंडिपेंडेंट लोग ये गवाही दे रहे हैं कि कल का जलसा जानदार था। तो हमें ये नज़र आ रहा है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको 120 रुपये वाला, 140 रुपये वाला, 150 रुपये वाला पेट्रोल तो बहुत महंगा लगता था। आपको 300 रुपये वाला पेट्रोल सस्ता लगता है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम तो रिएक्ट करेगी। हाँ जी, लें जी सवाल। पीछे आज पहली दफ़ा कैमरा मैन ने सवाल। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बड़ी गर्मा गर्म होती है, अगर आपकी और अता तारुल की सुलह करा दी जाए तो क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो मुझे समझ नहीं, तंजीम साजी केड़े वाली तंजीम साजी? नहीं, वो आजकल इन्होंने तंजीम साजी का नवा नाम ही रखा हुआ है ना, इन्होंने कोड भी होर ने।
ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, मैं डर गया, मैं क्या साडा केड़ा हाई लेवल पे तंजीम साजी शुरू कर। सो एक तो देखिए बात ये है कि हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में बादशाही नहीं होती, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। आज एक बंदे के पास एक होता है दूसरे, तो जब भी चेयरमैन को कोई चीज़ मुनासिब लगती है वो करते हैं। इस टाइम हमारी पार्टी बेहतरीन, तमाम उसके अकाबरीन बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इस टाइम ऐसी कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन अगर कभी होगी तो आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा किस टाइम पीटीआई का ग्राफ आसमान की धज्जियों पे छू रहा है पब्लिक में, अगर आप पब्लिक में जाएं तो क्या वजह है कि आप किससे मुतालबा करते हैं? आप पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों नहीं खत्म करके और फौरी इलेक्शन, क्योंकि मुतालबा आपका ये है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, तो आप ये भी गवर्नमेंट से क्यों नहीं रिजाइन करते और आ जाए सड़कों पे खुद इलेक्शन हो जाए? देखिए बात ये है, ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त बनता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो ना होता तो आपका जवाब दुरुस्त होता कि आप केपीके की असम्बली से इस्तीफ़ा दें तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। केपीके की पंजाब की असम्बली में स्पीकर के होते हुए एक होटल के अंदर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जाली इजलास बुला के जिस तरह बजट पास करवाया गया, उससे तो बेहतर था कि तमाम मेंबरान को बेचारों को दो दो डंडे मार के उनसे अंगूठे लगवा लेते और बजट पास करवा लेते। तो जब वो हो सकता है तो केपीके की आप असम्बली तोड़ें तो दिल करे उन्हीं लोगों को कैद करके उन्हीं से असम्बली करवा के उन्हीं से सारा काम करवाया जाए। तो ये चीज़ें बेमानी हैं जब तक पूरे मुल्क में नए इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तैयारी